I hope the target that we have set earlier, the portion you have to cover during this leave time of indirect tax, hope so you have studied. जिसका जिसका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है, हुआ पढ़ के एक बार. यस, निमिषा, तरुण. हुआ, एक बार पढ़ के हुआ. सो ऑल रेडी फॉर द टेस्ट, बिकॉज वी विल बी कंडक्टिंग टेस्ट जिनका जिनका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स. यस मैम. यस सर. कुछ डिफ़िकल्टी आया? मतलब आई जस्ट गॉट टू नो कि हम लोग जो नोटबुक में लिखते हैं तो तुम लोग को थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रहा है उस रीज़न से. बट वॉज वेर द नोट्स हेल्पफुल फॉर यू? कैसे पढ़ाई किया इंडायरेक्ट टैक्स का? यस यस मैम. नोटबुक में जो भी हम लोग ने नोट्स लिखा था वो हेल्पफुल थे, राइट? यस मैम. यस मैम. यस मैम. आई होप जब कंसेप्ट्स पढ़ने के टाइम तुम लोग ने उसमें से पढ़ा रहेगा, नोटबुक में से. यस यस मैम. या यस मैम. okay, so let us start with your tax law. okay, जिनका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है वो लोग डायरेक्ट टैक्स पे ध्यान दें कि उनको एक बैकग्राउंड है टैक्स क्या होता है. एंड जो न्यू स्टूडेंट्स है, नो वरी, हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ओनली. ओके, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर योर पेपर नंबर 4. okay, paper number 4, that is your tax laws. Everyone, okay, we are preparing paper number 4, tax laws. Now tax laws has two tax. There are two types of taxes. One is direct tax and another one is indirect tax. okay, one is direct tax and another one is indirect tax. पेपर एक है लेकिन उसके अंदर हम लोग को दो तरह का टैक्स पढ़ना है. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. okay, now your direct tax is of 50 marks in your paper and your indirect tax is also of 50 marks. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का आने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का आने वाला है. एंड योर पेपर इज MCQ बेस्ड पेपर. okay, this is not descriptive paper, this is your MCQ based paper. So here what is important, descriptive में क्या होता है, the way you write your answers, that is important. बट वहाँ पे अगर कुछ नहीं भी आता है देन ऑल्सो यू कैन जस्ट रैंडमली, अगर एक प्रोविजन पता है तो उसको एक्सटेंड करके तुम 4-5 लाइन लिख सकते हो. बट इन केस ऑफ MCQ you have to be correct. okay, you have to be accurate, your speed should be maintained and your answer should be accurate. okay, so इसलिए your basic should be very important, basic should be crystal clear. जो भी प्रोविजंस है टैक्स में, क्या रहते हैं, प्रोविजंस रहते हैं. जैसे लॉ के अंदर प्रोविजंस रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, सेक्शंस का जो प्रोविजंस रहते हैं, सिमिलरली टैक्स में भी यही होगा. देयर आर सेक्शंस and there are provisions. So for that section you have to see what is the provision and how are you going to apply that provision. अब ये जो provisions रहेंगे they could come as a descriptive question. मतलब या तो MCQ या तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे या फिर डायरेक्ट प्रोविजंस ही आ जाएगा. दैट सो एंड सो सेक्शन इज एप्लीकेबल टू सो एंड सो प्रोविजन, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू सो एंड सो रीजन और ऐसा. या फिर क्या आएगा, क्वेश्चन बेस्ड आएगा, मतलब मिस्टर ए XYZ लिमिटेड वैसे करके कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा या फिर प्रोविजन बेस्ड आएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर द प्रोविजन as well as you should have the idea how you are going to apply that provision. okay, so you have direct tax of 50 marks and you have indirect tax of 50 marks. okay, now first of all, what do you mean by tax? yes, can anyone tell me what is the meaning of tax? what if I am not earning profit, still am I liable to pay tax? For example, I am doing a service, I am employee somewhere, so am I liable to pay tax there? I am earning the salary, so I am not earning any profit, I am working
for which I am getting the reward in the form of a salary. So am I liable to pay tax there? In that case, the answer is yes. So what is tax? It is nothing but compulsory extortion of money. You can say it is a compulsory extortion of money. Now what do you mean by compulsory? That means is it optional? मतलब ऐसा है क्या कि if the Ambani is earning, then Ambani has a close relationship with the government, that means he is the major contributor of the income, so he is not liable to pay tax. ऐसा कुछ है क्या? No, there is no difference between Ambani and a middle class person who is earning salary. Okay, it is a compulsory. If you are earning income, then you are liable to pay tax. You have to pay tax to the government. Now why this tax came into force? Because in ancient times, what was happening, that there was a king, okay, and there were the villagers. Now whatever the villagers used to earn, now there should be the administrator. King has to run the village. Okay, king has to run the village. He has to look after the administration, whether all proper facilities are provided to villagers or not. So for that purpose, the king needed the money. So what happened? Now king is not going to work. Okay, so he is the king. So what he used to do? He used to impose the tax on people. So whatever the people used to earn, now a small portion of that income they were giving to the king, and king was using that money for the welfare of the society. So from this ancient time, like it is given in our religious textures also. Okay, there were manuscripts written. Okay, there is Arthashastra. So there is a book called as Arthashastra. Even in that Arthashastra also, the mention of tax word is mentioned over there. So it is coming from the ancient times. So similarly we are also following कि अपने पास जो भी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गया, सोशल फैसिलिटीज़ हो गया, वाटर फैसिलिटीज़ हो गया, तो ये सब जो भी रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सब कहाँ से मेंटेन होता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है ना. फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज रिसीविंग दिस मनी? From direct tax and indirect tax. Okay, these are the major sources of income for the government. If you go and check lecture के बाद check करना कि कितना तो भी crores of money the government is earning from the in the form of direct tax and indirect tax. Indirect tax का तो monthly रहता है. इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी का मंथली रेवेन्यू रहता है गवर्नमेंट को, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का भी आगे देखोगे एडवांस टैक्स के फॉर्म में, या फिर साल में जो अभी ये ड्यू डेट्स आती है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स आते हैं, तो इन दैट फॉर्म ऑल्सो गवर्नमेंट अर्न्स crores and crores of rupees. So these are the two major revenues for the government which government utilizes for the welfare of the society. ओके, गवर्नमेंट के जो भी ऑब्लिगेशंस है, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्लिगेशंस, सोशल ऑब्लिगेशंस हो गए, टू मेंटेन लॉ इन द सोसाइटी. अब जो भी सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, पुलिस हो गए, इन सबको कौन सैलरी देता है? गवर्नमेंट सैलरी देता है. तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. देयर आर अदर रेवेन्यू सोर्सेज ऑल्सो, बट दीज टू आर द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. Okay, so it is a compulsory extortion. What do you mean by extortion? Extortion means collection. Okay, so government compulsory collects what? It collects money. But क्या गवर्नमेंट कोई भी कहीं से भी उठ के टैक्स कलेक्ट कर सकती है क्या? दैट मीन्स कल को उठ के मोदी जी ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके घर पे लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स है, दे हैव टू पे द इक्विपमेंट टैक्स, या फिर जिनके घर पे 4 व्हीलर्स है, दे हैव टू पे द मोटर कार टैक्स. ऐसे उठ के बोल सकते हैं क्या? नो. मोदी जी हैज टू टेक द राइट्स फ्रॉम द लॉ. ओके, सो टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ. ठीक है, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट,
कौन होता है सबसे बड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन होता है सबसे बड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर मोदी जी को कल को उठ के, हुएवर इज द प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द मोदी जी, बट हुएवर इज द प्राइम मिनिस्टर, हुएवर वांट्स टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, तो वो लोग ऐसे ही उठ के कोई भी रूल्स नहीं बना सकते, कोई भी लॉ नहीं बना सकते. दे हैव टू टेक पावर्स फ्रॉम द लॉ. एंड व्हाट डू मीन बाय लॉ? लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स मेंशन किए हैं कि ओके ऑन सो एंड सो पर्टिकुलर थिंग government can collect tax, then okay you are allowed to collect tax from the public on so and so particular thing. Understood this much? So they have to take powers from the constitution. तो कोई भी लॉ हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, कहाँ से कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट को पावर्स, कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैव टू कलेक्ट द पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पब्लिक. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल्स. क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आर्टिकल्स. तो ये आर्टिकल्स के अंदर कॉमन, आर्टिकल्स के अंदर क्या मेंशन किया गया है? कॉमन पॉइंट्स मेंशन किए गए कि राइट, जैसे राइट टू इक्वलिटी वगैरह हो गया, वो सब कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में. वैसे ही इसके अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 265. कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 says that if government wants to collect tax, then they have to take permission, they have to make an act. क्या बनाना पड़ेगा उनको? एक्ट बनाना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए उनको क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट बनाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू लेवी इनकम टैक्स, क्या लेवी करना है? इनकम टैक्स. तो उसके लिए क्या बनाया गया? इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया. इफ गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट जीएसटी, तो उसके लिए जीएसटी एक्ट है. अगर गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है कस्टम ड्यूटी, तो उसके लिए क्या है? कस्टम्स एक्ट है. कस्टम्स एक्ट है. वेल्थ टैक्स कलेक्ट करना है, उसके लिए भी एक एक्ट है. लग्जरी टैक्स कलेक्ट करना है, उसके लिए भी एक एक्ट है. तो ऐसा कहाँ पे लिखा है? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 265. सो इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 265 दैट इफ गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट द टैक्स, they have to make an act, they have to make a law which will govern that collection of tax. उस एक्ट का यूज करके, उस लॉ का यूज करके गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पब्लिक. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो व्हाट इज टैक्स? इट इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ. इज दैट क्लियर? नाउ आर्टिकल 265 तो है. आर्टिकल 265 में क्या बोला है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है तो वो क्या करेंगे? एक्ट बनाएंगे. बिना एक्ट के वो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. बट कौन से मैटर्स के ऊपर एज वी ऑल नो, इंडिया के अंदर देयर इज अ डुअल गवर्नमेंट. देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दिल्ली वाला गवर्नमेंट. ठीक है. एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स एवरी स्टेट हैज देयर गवर्नमेंट. महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया, गोवा गवर्नमेंट हो गया, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हो गया, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हो गया. सो देयर आर ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर इज वन सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डुअल गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एक्ट को पास करवाना है तो दे हैव टू टेक द decision, they have to take the majority of the state and then it will go to center and then it will be passed. Okay, so first of all we understand what is the difference between direct tax and indirect tax. अब क्या होता है direct tax and indirect tax? As the name suggests कि direct tax मतलब क्या है यहाँ पे? It is levied and borne by the same person. It is levied and borne by the same person.
मतलब अगर मिस्टर लेवी मतलब क्या, लेवी मतलब क्या, एप्लीकेशन मतलब जिसके ऊपर लागू होता है वो एक्ट, एक्ट जिसके ऊपर लागू हुआ. एंड बोन मतलब क्या, बर्डन, उसका बर्डन कौन उठाएगा, जो टैक्स लगा है उसका बर्डन कौन उठाएगा. तो अगर समझो कि मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए के ऊपर टैक्स लेवी हुआ, दैट मीन्स हु इज लायबल टू पे, लेविड मीन्स व्हाट, लायबल. हु इज लायबल टू पे, Mr. A. okay, Janvi is right, saying that should we write this. If you want to write, you write this. I will give you notes also. ये हैंड रिटन नोट्स नहीं, एक प्रॉपर समराइज नोट्स है, हम वो शेयर करेंगे, लिंक में आ जाएगा आपको, मतलब आफ्टर द लेक्चर आई विल गिव यू इन द लिंक. बट इसके बाद ये लिखना है तो लिखो, इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो हम लोग लिखेंगे, वो तुम लोग को लिखना पड़ेगा नोटबुक में. बिकॉज क्या होता है ना, मतलब सर टोल्ड मी दैट आई शुड गिव यू द लाइव नोट्स, जैसे आप लोग आई गेस लॉ के लेक्चर में करते हो. एंड वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आई थिंक सम स्टूडेंट्स वेर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज दे टोल्ड कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड सो यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, लाइक आपको नोट्स भी बनाने पड़ते हैं एंड लिखना भी पड़ता है. सो इफ इट्स पॉसिबल, इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल, तो अगर हो सके तो कैमरा ऑन रखो सो दैट आई कैन सी यू, तो वो थोड़ा इंटरैक्टिव लगेगा. ओके, एंड जब भी मैं व्हेन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड दैट टाइम यू डोंट राइट इन योर नोटबुक. ओके, आई विल गिव यू टाइम टू राइट. ठीक है, जब मैं बोर्ड पे लिखूंगी तभी आपको नहीं लिखना है. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. आई विल राइट ऑन द बोर्ड, आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, register the concept. If you have any doubt you ask me, and after that I will give you the time, you write on the board. Because all these things, ये क्या होगा, concepts जब notebook में लिखोगे you will write it with your hand, you will have your hand written notes which are very much easy to register in your brain. ओके, नॉर्मल नोट्स से पढ़ने से अच्छा है, नोट्स आई विल गिव यू नोट्स ऑल्सो, सब कंसाइज नोट्स रहेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रहेंगे ऑल दोज कंसेप्ट्स वी आर गोइंग टू राइट इन द नोटबुक. आई विल नॉट गिव यू लाइव नोट्स वगैरह नहीं रहेगा, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. आई विल गिव यू द टाइम, वी विल सॉल्व MCQ, सब अच्छे से करेंगे. ओके, so direct tax, Okay, ma'am. it is levied and borne by the same person. By the same person means कि अगर समझो मिस्टर ए है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मिस्टर ए अंबानी, ठीक है, मिस्टर अंबानी के ऊपर अगर मैंने लेवी किया, मिस्टर अंबानी इज सपोज अर्निंग ₹1 crore in a year, his salary is 1 crore in a year, मिस्टर ए का सैलरी इज 1 crore in a year. वो सैलरी के ऊपर he has to pay tax to the government. So what I did, I made him to pay tax on Mr. A. तो वो जो इनकम टैक्स है वो कौन भरेगा, मिस्टर ए ही भरेगा, मिस्टर ए. सो इफ इट इज लेविड ऑन मिस्टर ए it will be borne by Mr. A only. Okay, if Mr. A is earning the income, Mr. A is earning the salary and I am making him liable to pay income tax, then he only has to pay his income tax. उसके जगह पे Mr. B नहीं पे कर सकता. Okay, when it is direct tax. What is direct tax? Everyone, it is levied. Yes, everyone, it is levied and borne by the same person. By the same person. Levied and borne by the same person. But in case of indirect tax, what does the name suggest? Indirect. Indirect मतलब क्या, कि directly you don't feel the burden. Your burden is shifted. Okay, so here it is levied by the supplier, but it is borne by the ultimate consumer. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज दी, फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग दिस मार्कर, द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर इज 25 rupees. ओके, the cost of this marker is 25 rupees. Now if this marker, in this 25 rupees tax is also included,
because what is this 25 rupees? It is the MRP. What is 25 rupees? MRP. What do you mean by MRP? Maximum retail price. ओके एंड जो भी तुम देखोगे इसमें क्या लिखा रहता है नीचे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. सो दिस इज द MRP, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो ये 25 रुपीज के अंदर जो है वो क्या है? टैक्स इंक्लूड है. दैट मीन्स व्हेन आई परचेज दिस मार्कर and I paid 25 rupees to the shopkeeper. So in that 25 rupees tax was also included. But क्या मैंने अलग से कुछ पे किया क्या टैक्स का अमाउंट? No. In that 25 rupees only I paid the tax. So it was not a pinch to my pocket. It was not a pinch to my pocket. I didn't even realize that while paying that 25 rupees I am paying tax also. ओके बट हुज लायबिलिटी वॉज दिस? मतलब ये मार्कर बेच के इनकम किसने कमाया? मार्कर बेच के जिसने मेरे को मार्कर बेचा है दैट मीन्स सप्लायर. ओके, सप्लायर हैज sold this marker to me. That means supplier has earned the income and I have paid the amount. That means it is my expense and it is supplier's income. तो टैक्स कौन भरेगा? सप्लायर भरना चाहिए या मैं भरनी चाहिए? सप्लायर शुड पे बिकॉज सप्लायर इज अर्निंग इनकम. वी अंडरस्टूड कि टैक्स कौन भरता है? जो इनकम कमाएगा वो टैक्स भरेगा. तो अपने केस में कौन होता है? सप्लायर शुड पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट. बट सिंस इट इज एन indirect tax, here supplier has the right to collect tax from the customer. सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसके पास ये राइट्स है कि वो क्या कर सकता है? कस्टमर के पास से कलेक्ट कर सकता है. ओके, सो लेवी किसके ऊपर हुआ था? मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम द सप्लायर ऑफ दिस मार्कर. मैंने मेरे एक पॉकेट से गवर्नमेंट को पे किया टैक्स बिकॉज आई एम अर्निंग द इनकम. तो मैंने मेरे एक पॉकेट से गवर्नमेंट को पे किया एंड दूसरे पॉकेट में मैंने कस्टमर के पास से कलेक्ट कर लिया. तो मेरे पे कुछ बर्डन आया क्या? सप्लायर पे कुछ बर्डन आया क्या? नहीं. बट अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया? कस्टमर के ऊपर. किसके ऊपर आया? कस्टमर. इसके नाम में ही क्या लिखा है? कस्टमर के मर लिखा है. मतलब उसके नसीब में मरना ही है. कस्टमर के नसीब में कुछ भी करके मरना ही है बस. ओके, सो इट इज लेविड बाय सप्लायर. फॉर एग्जाम्पल हियर it will be levied on Mr. A. बट बोन कौन करेगा? मिस्टर बी बोन करेगा. ओके, बर्डन विल बी शिफ्टेड टू मिस्टर बी. अंडरस्टूड? Second distinguishes direct tax is progressive in nature. Direct tax is progressive in nature. प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस मतलब क्या? जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता जाएगा मेरा अमाउंट ऑफ टैक्स भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. इट इज प्रोग्रेसिव. इट विल गो ऑन प्रोग्रेसिंग नेचर. मतलब there is a slab rate in income tax. That means if I am earning 5 lakh rupees, I have to pay 5% of income tax. If I am earning 10 lakh rupees, I have to pay 20%. And if I am earning more than 10 lakh rupees, for example, I am earning 50 lakh rupees, then I have to pay 30% of income tax. So as you have seen, less income, less tax, more income. As and when your income gradually increases, your rate of tax also goes on increasing. Okay, so it is getting progressive. It is progressive in nature. Whereas in this first, this is regressive in nature. This is regressive in nature. Regressive मतलब क्या? Irrespective of the amount. For example, if this marker, कौन सा है ये? डोम्स का मार्कर है.
अगर ये डोम्स का मार्कर मैं परचेस करूंगी देन ऑल्सो इट विल कॉस्ट 25 रुपीज, एंड इफ मुकेश अंबानी विल परचेस दिस मार्कर देन ऑल्सो इट विल कॉस्ट 25 रुपीज ओनली. ओके, डोम्स कंपनी कांट से कि मुकेश अंबानी परचेस कर रहे हैं तो हम 25 के जगह पे 2500 में बेचेंगे. नो, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ कस्टमर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ हुएवर इज द परचेसिंग, इट द टैक्स रेट इज सेम. ओके, अगर ये मार्कर के ऊपर इफ इट इज 5% GST, मतलब वो जो 25 रुपीज है अगर उसके अंदर 5% GST है, इफ आई एम परचेसिंग देन ऑल्सो इट विल बी 5% GST, इफ मुकेश अंबानी इज परचेसिंग देन ऑल्सो इट विल बी 5% ऑफ GST. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा, मेरे इनकम पे कितना टैक्स रेट लगेगा, 5%, 5 लाख के 5%. नीचे, ठीक है 5%. लेकिन मुकेश अंबानी के इनकम पे कितना रेट लगेगा, ऑब्वियसली हाईएस्ट स्लैब रेट, दैट इज 30%. Okay, so here in case of income tax, the tax rates are different. They are progressive, but here they are regressive. They are standard irrespective of the income. Understood, everyone? Okay. Then we write some example. In case of income tax, the administrative cost is more. Administrative cost क्यों ज़्यादा रहता है? Administrative cost मतलब क्या कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स का खर्चा, इनकम टैक्स ऑफिस का खर्चा क्यों रखना पड़ता है, बिकॉज इफ दे डोंट कीप अ प्रॉपर चेक ऑन द इनकम्स, ओके, वो केस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ टैक्स इवेशन. Okay, what people will do tax evasion. For that we need proper this bunch of people, bunch of officers who are, and we have to pay, we means who government has to pay salary to them, so they have to make a proper regulation. But in case of indirect tax में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत लेस होता है, बिकॉज जैसे जैसे गुड्स आगे आगे सेल होते जाते हैं तो वो इनडायरेक्टली उस कॉस्ट के अंदर अमाउंट, टैक्स का अमाउंट क्या होते जाता है, रिकवर होते जाता है. बट यहाँ पे यू हैव टू कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल. In that case, here administrative cost is more. Okay, so what are the example of direct tax? It is income tax. Okay, income tax कौन से टाइप का टैक्स है, it is a direct tax. And in case of indirect tax, it is GST and customs. Okay, indirect tax के अंदर क्या आएगा, indirect tax वालों याद आ रहा है कुछ, कैसे बैठे हो? Yes, ma'am. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, इट इज जीएसटी एंड कस्टम्स. जीएसटी भी एक पार्ट है एंड कस्टम्स भी एक पार्ट है. देन इन डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. so now we are going to start with the Yes, ma'am. income tax part. Okay. Okay, now we understand what is the income tax part. तो अब इनकम टैक्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, what is income, name only suggest, it is a tax on income. Tax on income, that means if you are earning income, then only you have to pay tax. income का opposite क्या होता है, वेरी गुड. इनकम का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपेंस. तो इफ यू आर डूइंग एक्सपेंस देन आर यू लायबल टू पे टैक्स, नो. ओके, इफ यू आर अर्निंग इनकम देन ओनली यू हैव टू पे टैक्स. इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेंस देन यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स. तो वो क्या होता है, इनकम मतलब वॉट एवर यू आर अर्निंग, इफ इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट 1961. Okay, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देर इज अ डेफिनेशन ऑफ इनकम गिवन. Okay, so if whatever you are earning, whatever amount you are receiving, if it is under the definition of income, then only you have to pay tax on that income. If it is not under the definition of income, then you are not liable to pay tax on that income. Understood this much? ठीक है.
अब बहुत Yes, लोगों ने ma'am. क्या दिया है, टैक्स का अलग अलग डेफिनेशन दिया है. देयर आर डिफरेंट ऑथर्स जिन्होंने क्या किया है, टैक्स का डेफिनेशन दिया है. बट बेसिक एग्जांपल क्या, बेसिक उनका अंडरलाइंग मीनिंग क्या होता है, it is a contribution or you can say compulsory amount which is collected from the people. Why? To for the interest of the public which the government is going to fulfill. Okay, so it is the imposed, it is the burden which is imposed on the public by the local authority, by the public authority who have to fulfill the obligations towards the public. Okay, now income tax act. तो अभी टैक्स और इनकम, तो ये तो हम लोग ने देखा कि कहाँ से आया, आर्टिकल 265 से. कहाँ से आया, आर्टिकल 265 से. बट आर्टिकल 265 के अंदर तो ये बोला है कि बिना एक्ट के गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती. तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स कोई तो भी एक एक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, वो तो हो गया, एक्ट बनाना पड़ेगा. बट इनकम के ऊपर एक्ट बनाना है ऐसा कहाँ पे लिखा है, जैसे गुड्स एंड सर्विस हो गया, जीएसटी हो गया, तो ठीक है जीएसटी के ऊपर एक्ट बनाना है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस के ऊपर बनाना है. गुड्स एंड सर्विस समझ में आता है ना, सिर्फ डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब क्या, इनकम. मैं अभी आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है ना, आफ्टर वॉट एवर अमाउंट आई विल रिसीव, जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनको क्या मिलता है, सैलरी, वो उनका क्या हो गया, इनकम. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या हो गया, बिजनेस से जो भी पैसा आएगा वो उनका क्या हो गया, इनकम हो गया, उसके ऊपर टैक्स देना. बट गुड्स एंड सर्विस में क्या होता है, ओनली इफ यू आर सेलिंग द गुड्स और यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, then only you have to pay the GST. So there it is, goods and services are covered, and in direct tax income is covered. Okay, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज आर्टिकल 265 में तो बोला है कि ठीक है बिना एक्ट के आप क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो. बट इसके अलावा क्या है, देयर इज आर्टिकल 246. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में क्या दिया है, आर्टिकल 246 के अंदर दिया है, देयर आर 3 लिस्ट गिवन. Who is joining now? ओके, आर्टिकल 246 के अंदर क्या दिया है, लिस्ट दिया है. देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज, बोलो तरुण, साक्षी, यूनियन लिस्ट, State list, concurrent list. वेरी गुड, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो आर्टिकल के अंदर क्या दिया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इसका मतलब क्या, सी अब हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. जब टैक्स कलेक्ट करने का बात आता है, मतलब टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का इनकम है, सो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, तो दोनों झगड़ा करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलूँ तो महाराष्ट्र, आई स्टे इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे. तो उद्धव ठाकरे इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड मोदी जी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का बात आया तो यहाँ से उद्धव जी झगड़ा करेंगे कि ये इनकम हमारा है, एंड वहां से मोदी जी झगड़ा करेंगे कि नहीं वो इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट का है. ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ विल फाइट. For that purpose, what is happened in Article 246, there are क्या बना दिया है, लिस्ट बना दिया है कि यूनियन लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे मैटर्स है, अराउंड 92 मैटर्स है. इनको क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको, एंट्रीज बोलते हैं. ठीक है, तुम लोगों को इतना नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है, मतलब कितने एंट्रीज है वो नहीं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि यूनियन लिस्ट क्या होता है. तो व्हाट इज यूनियन लिस्ट, देयर आर सर्टेन एंट्रीज गिवन.
on these entries, that means on these matters, constitution has given powers to central government. किसको powers दिया है? Central government. That is, on all these matters, who can make law? Central government has the powers to make law and collect tax from these matters. अंडरस्टूड? वैसे ही स्टेट लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे पावर्स है, 1 2 3 4. इसमें से सबसे एक फेवरेट, ओके, इसमें सबसे एक फेवरेट लड़कों का फेवरेट है अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एंट्रीज है, बहुत सारे मैटर्स है, जिसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज ऑल्सो वन ऑफ दिस मैटर. अल्कोहलिक लिकर मतलब क्या? अपना नॉर्मल लिकर जो रहता है वो. इसके ऊपर किसको दिया है पावर्स बनाने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट. एक्सक्लूसिव पावर्स. ओके, एक्सक्लूसिव पावर्स मतलब क्या? कि जब स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा तो सेंटर टांग नहीं अड़ाएगा, और जब सेंटर कानून बनाएगा तो स्टेट टांग नहीं अड़ाएगा. अंडरस्टूड? बेस्ट एग्जांपल सबको पता रहेगा दैट अल्कोहलिक लिकर इज बैंड इन गुजरात. ठीक है, बट इट इज चीपेस्ट इन, कहाँ पे सबसे चीप रहता है लिकर? यस, वेरी गुड निमिषा. इट इज चीपेस्ट इन गोवा. ठीक है, तो क्यों ऐसे डिफरेंस रहता है? अगर इफ दिस इज द मार्कर, राइट, दिस मार्कर विल कॉस्ट 25 रुपीज इन महाराष्ट्र ऑल्सो, दिस मार्कर विल कॉस्ट 25 रुपीज इन गुजरात ऑल्सो, दिस मार्कर विल कॉस्ट 25 रुपीज इन गोवा ऑल्सो. ठीक है, सेम प्राइस रहेगा. बट लिकर के केस में क्या होता है? इन महाराष्ट्र लिकर इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड्स. लिकर ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. बट लिकर का प्राइस महाराष्ट्र में अलग रहेगा, गुजरात में तो कंप्लीटली बैंड है, एंड गोवा के अंदर क्या है? चीप प्राइस में है. तो क्यों ऐसा डिफ्रेंसिएशन? क्यों? बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ द स्टेट. तो ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनको कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना भी है या नहीं करना है, वेदर दे वांट टू कीप इट लीगल और इलीगल, ऑल दिस इज द मैटर ऑफ स्टेट. Okay, in this decision union government, central government will not interfere. Okay, he will say तुमको जो करना है करो, तुमको टैक्स कलेक्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, या फिर what tax rate you want to keep, all these are state government matters. Understood this much? तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एंट्री नंबर 82 यहाँ पे लिखा है, यहाँ से इनकम टैक्स का जन्म कहाँ से हुआ? बर्थ. इनकम टैक्स का बर्थ कहाँ से हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट. आर्टिकल एंट्री नंबर 82, आर्टिकल 246, एंट्री नंबर 82. यहाँ पे लिखा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर्स टू कलेक्ट टैक्स on income other than agriculture income. Agricultural income. Yes, एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट has the exclusive powers. Exclusive powers मतलब क्या? कौन टांग नहीं अड़ाएगा इसके अंदर? State government will not interfere in these matters. तो central government has the power to collect tax on income, but क्या लिखा है? Other than agriculture income. That means government cannot collect tax because agriculture is the main sector of our country. Okay, it is the backbone of our country, and farmers and all,
So they are the main community of our country. So government cannot collect tax from the backbone activity of our country. That's why agriculture income is excluded. So what does the government has right? Government has right to collect tax on income. तो यहाँ से powers लेके सेंट्रल गवर्नमेंट took powers from this entry and उन्होंने क्या बनाया? इनकम टैक्स एक्ट 1961. Understood this much? Everyone? That's Yes, ma'am. yes. Any doubt? Anyone? No. No, ma'am. Okay. So Ma'am, yes. ma'am, 82 we can also say subsection, right? No. These are articles. Okay, Subsections are there in sections. okay, all right. Okay. Articles के अंदर ये entries है. Okay. So central government. That's why जब सेंट्रल गवर्नमेंट इफ यू ऑल नो मतलब जिनको पता रहेगा फरवरी में बजट आता है राइट एवरीवन नोज ऑन 1 फरवरी बजट आता है वो बजट के अंदर क्या रहता है कौन देता है फिनेंस मिनिस्टर वो टाइम पे जो भी फिनेंस Yes, मिनिस्टर रहता है वो बजट देता है तो वो टाइम पे क्या होता है दे ऑल्सो गिव द इनकम टैक्स रेट्स इफ देर आर एनी चेंजेस इन रेट्स इफ देर आर एनी इनकम इज टैक्सेबल और एनी इनकम इज एग्जाम वो सब क्या होता है वो सब वो बजट के अंदर होता है दैट इज अ फिनेंस बिल बजट मतलब क्या होता है वो फिनेंस बिल रहता है वो एवरी ईयर पास होता है 1 फरवरी को एवरी ईयर पास होता है सो दिस इज द बेसिक ये इनकम टैक्स एक्ट बेसिक है मतलब ये तो हम लोग को पढ़ना ही है इसके अंदर सब सेक्शंस है वो तो एप्लीकेबल है इसके साथ साथ जो एवरी ईयर बजट आता है वो भी इसमें एप्लीकेबल हो जाता है ओके सो इन दिस अंडर Yes, ma'am. यस तो इसके अंदर जितना भी सब है देर आर अराउंड 298 सेक्शंस ये एक्ट है ना ये क्या है एक्ट है एक्ट के अंदर क्या रहते हैं सेक्शंस सो देर आर 298 sections total 298 sections total है तो ये 298 sections सब आपके पोर्शन में नहीं है अभी थोड़े से बट पूरे एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है 298 तो ऑल दीज 298 sections आर एप्लीकेबल बट अलोंग विथ दिस एवरी ईयर क्या होता है बजट आता है मतलब फिनेंस बिल पास होता है वो जो फिनेंस बिल जो रहेगा उसके अंदर क्या होता है ये 298 सेक्शंस के अंदर देर आर सम अमेंडमेंट्स क्या होते हैं अमेंडमेंट्स होते हैं ओके some section will be applicable some section will not be applicable there will be some changes in some sections तो वो सारे कब होते हैं बजट के टाइम होते हैं तो वो अमेंडमेंट्स भी हम लोग को पढ़ने होते हैं दैट मीन्स दैट फिनेंस बिल इज ऑल्सो एप्लीकेबल अंडरस्टूड सो वी आर डूइंग दिस 82 एंट्री नंबर 82 के पास से पावर्स लिया कि टैक्स ऑन इनकम ठीक है हम क्या बनाएंगे इनकम टैक्स एक्ट बनाएंगे फिर आता है स्टेट लिस्ट तो यूनियन लिस्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव पावर्स किसके पास रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर्स किसके पास रहते हैं State government. स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट में क्या रहेगा देयर आर मैटर्स वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव द पावर्स ठीक है बोथ म्यूचुअली हैव द पावर्स टू लेवी टैक्स ऑन आइटम्स ठीक है देयर आर सर्टेन एंट्रीज गिवन जैसे यहाँ पे है वैसे ही कंकरेंट लिस्ट में भी है ये सारे मैटर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मैटर्स रूल्स बना सकती है जो कहाँ से आया है यहाँ से क्या आया है जीएसटी आया है क्या आया है यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट में से जीएसटी आया है Yes. अंडरस्टूड एवरीवन Yes. या किसी को लिखना है तो लिख लो मैम हो गया मैम लिख लिया लिख लिया ओके यस मैम यस एनी डाउट सो फार नो मैम क्या क्या पढ़ा हम लोग ने डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा क्या होता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इट इज लेविड एंड बोन बाय सेम पर्सन Same person. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है यस मैम
लेविड बाय सप्लायर बट इट इज बोर्न बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, डायरेक्ट टैक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थोड़ा कम होता है। फिर डायरेक्ट टैक्स में हम लोग बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम अर्निंग द सैलरी, ओके, एंड मेरे को इनकम टैक्स भरना है, तो आई कैन नॉट से दैट माई मॉम विल पे द इनकम टैक्स। ओके, आई कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन। बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? यू शिफ्ट द बर्डन। सप्लायर था, सप्लायर ने गुड्स बेचा, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, उसने क्या किया? कस्टमर के पास से कलेक्ट करके लिया, तो उसने अपना जो बर्डन था वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? कस्टमर के ऊपर। उसको मरने के लिए छोड़ दिया टैक्स भरने के लिए। ओके, नेक्स्ट देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ direct tax. Okay, now we will focus on the direct tax. So in case of direct tax, there are certain merits and demerits. Okay, अब merits और demerits क्या रहेंगे यहाँ पे direct tax के अंदर? direct tax का क्या रहेगा merits? First of all, there is an equity. इक्विटी मतलब क्या? इक्वल, एवरीवन इज इक्वल। यहाँ पे अगर 30% मेरे को भी टैक्स भरना है तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना इनकम है। ओके, कितना इनकम है? अगर इफ आई एम अर्निंग more than 10 lakh rupees, then I also have to pay 30%. If any other person is also earning more than 10 lakh rupees, he also has to pay the 30% tax. मतलब जो टैक्स जो स्लैब है वॉल्यूम ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा? टैक्स का रेट भी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड इज इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी एंड देयर इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होते जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने इफ देर इज एनी अर्थक्वेक और इफ देर इज एनी फ्लड, देर इज एनी नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि अभी पैंडेमिक वगैरह आ गया, वो टाइम पे क्या हो गया? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हो गया। Now in this case, if government wants to increase the slab rate, government can easily increase the slab rate here. So it is very elastic, it is very flexible, that when the government faces any emergency, then they can collect money from the public. Okay, so there is elasticity and there is productivity, that means government can easily collect. Next, there is certainty. Okay, certainty मतलब क्या? Now taxpayers, they are aware of the quantity of tax. Sorry, जो भी उनको टैक्स भरना है they are aware. जैसे कि एग्जाम्पल in whole year I know that I am going to earn my salary is going to be say 15 lakh rupees. So I know on this 15 lakh rupees how much tax I have to pay, or I can compute at the year end, I can compute the tax amount. बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? यू डोंट नो, बिकॉज इस महीने आपका बिजनेस अच्छा हुआ तो यू आर अर्निंग मोर इनकम, यू विल पे मोर टैक्स। बट अगर नेक्स्ट मंथ आपका बिजनेस कम हुआ तो दैट टाइम यू आर नॉट अर्निंग इनकम एंड यू विल नॉट पे द मोर टैक्स। ठीक है, तो ये केस के अंदर क्या होता है? देयर इज अ सर्टेनिटी। ठीक है, देन इट फॉर दिस इट ऑल्सो रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। इट रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब क्या? क्या होता है? द रिचर पर्सन ही इज अर्निंग मोर इनकम, ही विल पे मोर टैक्स, तो उसके इनकम से मेजर पोर्शन कहाँ पे चला जाएगा? टैक्स में चला जाएगा, विच विल बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल्सो। इफ लो इनकम पर्सन विल पे लो टैक्स, हायर इनकम पर्सन विल पे मोर टैक्स, उससे क्या हो जाएगा? टैक्स दोनों का यूज हो जाएगा, उसका मेजर चंक ऑफ द पोर्शन, रिचर पर्सन का मेजर चंक ऑफ द पोर्शन कहाँ पे चला जाएगा? टैक्स में चला जाएगा, जो नॉर्मल वेलफेयर ऑफ दूसरे लोगों के लिए भी क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा, जिससे इनइक्वालिटी क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी।
कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोर्शन का बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन। तो जो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन रहता है वो सिंपल रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ लेम पर्सन, इवन अ लेम पर्सन, वो भी क्या कर सकता है, खुद का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकता है, बट वो बंदा जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको जीएसटी का नॉलेज रहेगा। बट इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स इज वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट टैक्स। बट डीमेरिट्स क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा डीमेरिट है यहाँ पे इवेशन। सबसे बड़ा, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया नॉट प्रोग्रेसिंग इज दैट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इवेड टैक्सेस। ओके, जैसे एक्ट बनता है, देर आर मेनी स्कॉलर्स हु फाइंड आउट द लूप होल्स इन द एक्ट। ओके, मतलब देर इज अ सेइंग कि इंडिया में लोग जितना एक्ट फॉलो नहीं करते उतना इंडिया में लोग लूप होल्स फॉलो करते। ऑब्वियसली जो भी इनकम अर्न करेगा किसको अच्छा लगेगा, टैक्स भरने को किसको भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी अपने दिल से टैक्स नहीं भरता है गवर्नमेंट को। देन वी ब्लेम दैट द इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग। इफ गवर्नमेंट विल नॉट अर्न, देन they will not spend on infrastructure and on development of the country. But उससे क्या होता है, major portion of the people they evade taxes, they find out how to escape the routes of paying the tax. Okay, so what is the biggest demerit in direct tax? Evasion. Okay, second is uneconomical. Uneconomical मतलब क्या? For example कि I am earning 10 lakh rupees. Now in this 10 lakh, as I am earning 10 lakh rupees, I have to pay the tax. But government will not see कि वो 10 lakhs के अंदर, for example, if my family is big, then I have more expenses. तो गवर्नमेंट वो नहीं देखेगी कि नहीं इसका फैमिली बड़ा है, इसको ज़्यादा एक्सपेंसेस करना है, तो इसके आफ्टर पेइंग टैक्स इसके हाथ में बहुत कम पैसा बच जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट नहीं देखेगी। आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़, ऑन 10 लाख रुपीज़ 20% स्लैब रेट है, 20% से टैक्स भरना है, तो मेरे को 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो इट इज़ वेरी अनइकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज, थर्ड इज लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ एंड आई नो दैट 20% इज गोइंग टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, नो वन लाइक्स टू पे द टैक्सेस, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डीमोटिवेटिंग फॉर मी कि जैसे ठीक है मेरा अभी 10 lakhs है, इफ इट इज 10 lakhs आई हैव टू पे 20%। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर मेरे को सैलरी पैकेज मिला 12 lakhs का, तो 12 lakhs का जैसे ही पैकेज मिला मेरा टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 30%। ओके, सो जस्ट फॉर अर्निंग दिस 2 lakh rupees I have to pay 10% extra tax, okay, to the government. So that will be a little bit demotivating for some people. So it is a very little incentive to work and save. Okay, next is, it is not suitable to poor country. दिस इज नॉट सुटेबल टू पुअर कंट्री, बिकॉज पुअर कंट्री का क्या होता है, उनका तो इनकम बेस ही इतना कम रहता है, दे अर्न वेरी लेस, एंड सिंस दे अर्न वेरी लेस तो उसमें से वो लोग क्या गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे और क्या खुद के लिए यूटिलाइज करेंगे। सो डायरेक्ट टैक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द पुअर कंट्री। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes. Any doubts? No, ma'am. Okay. Next is, this was about direct tax, merits and demerits of direct tax. Then we see merits and demerits of indirect tax. Merits and demerits. और इनडायरेक्ट टैक्स का मेरिट्स क्या रहेगा? सबसे पहले हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन। हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन, हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन मतलब क्या? इनकम टैक्स के अंदर क्या कि अगर मेरा इनकम
2,50,000 से 2,50,000 तक अगर मेरा इनकम है, एनुअल इनकम है पूरे साल का, इफ माई इनकम इज अबाउट 2,50,000, आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. 2,50,000 मतलब कितना हो गया, 12 महीने से डिवाइड करोगे तो 20,000 पर मंथ. 25,000. यस, तो अगर 2,50,000 तक इनकम है तो टैक्स भरने का जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज 2,50,000, दैट मीन्स मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 lakhs, 5 lakh. ठीक है, देन आई हैव टू पे 5% ऑफ इनकम टैक्स. 5%. Okay, then it is 5 lakhs to 10 lakhs. I have to pay 20%. 20%. And if it is more than 10 lakhs, then I have to pay 30%. 30%. ठीक है. So right now, I am not earning 2,50,000. I am not earning 2,50,000. So I don't have to pay any income tax. That means government is not getting any direct tax. But right now, I am utilizing this marker. I am utilizing the internet. I have purchased the laptop. I am using the mobile phone. तो ये सब चीज़ों का जो मैंने प्राइस पे किया है उसके अंदर मैंने क्या पे किया है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स पे किया. ठीक है. So majority of the population, even when you purchase a soap, when you are purchasing any little damn thing, if you are purchasing even a needle, even in that needle also indirect tax is included. When you are purchasing a chocolate of 2 rupees, in that also indirect tax is included. If government wants to collect, they can collect tax from those products also. When you purchase a paneer, Amul ka paneer, in that also indirect tax is included. Understood? तो वो क्या हो जाता है, I am the person who is not liable to pay direct tax, but I am indirectly paying the indirect tax. So majority of the population may not pay the direct tax. मतलब direct tax से government को income नहीं आएगा, but indirect tax से उसको definitely income आता है. Because all the population, the whole of the population, they consume goods as well as services. तो goods and services consume करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, indirect tax आ जाता है. Understood? So it is the higher revenue production. Higher revenue production, यहाँ से indirect tax से government को क्या मिलता है, सबसे ज्यादा revenue मिलता है. दूसरा इसका merit क्या है, no evasion. Here you can't evade the tax because when I am purchasing a soap, when I am purchasing this marker, मैं शॉपकीपर को ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि 25 रुपीज में से मेरे को टैक्स नहीं पे करने का है, आई विल पे ओनली 20 रुपीज. आई नो 4 रुपीज इज द टैक्स, 4 रुपीज आई विल नॉट पे, आई विल इवेड. इवेड मतलब क्या, चोरी. तो मैं चोरी करती हूँ टैक्स का, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या शॉपकीपर को? नहीं. आई हैव टू पे 25 रुपीज फॉर दिस एंड इन दिस 25 रुपीज आई हैव टू पे द टैक्स. सो देयर इज नो चांस ऑफ इवेशन. ओके. नेक्स्ट थर्ड इज इट इज लिटिल बिट कन्वीनियंट. कन्वीनियंट क्यों हो जाता है? कन्वीनियंट क्यों हो जाता है? बिकॉज जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है यू हैव टू पे मंथली. ओके. एंड इट इज हिडन इन द प्राइस. दैट मीन्स व्हेन आई एम पेइंग दिस 25 रुपीज, तो वो 25 रुपीज के अंदर टैक्स इंक्लूड है. तो मेरे को इतना बर्डन नहीं आता है कि ओ शिट आई हैव पेड टैक्स. ओके. एवरी डे यू कंज्यूम गुड्स, एवरी डे यू परचेज goods, you purchase services, indirectly you are paying tax in that. But have you ever realized that you are paying tax? Okay, we haven't realized. But जब direct tax पे करना होता है तब तो अपने पॉकेट से अलग से एक पोर्शन जाता है डायरेक्ट टैक्स का. तो दैट इज अनइकोनॉमिकल. मतलब वहाँ पे अपने को बर्डन फील होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन फील नहीं होता है. फोर्थ इज देयर इज वाइड कवरेज. Okay, there is wide coverage for indirect tax because more of the population they consume goods and services, and in that indirect tax is included. Okay, and again another one merit is elasticity. ये direct tax में भी था और ये indirect tax में भी. Elasticity के अंदर भी सेम कि जब गवर्नमेंट को फील होगा if they are not earning the revenue, अगर ये मार्कर के ऊपर से 5% GST है
और गवर्नमेंट को लगा कि दे वांट्स टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू, दे कैन इंक्रीज द टैक्स रेट एंड उससे फाई का वो लोग 12% भी कर सकते हैं। गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर वो लोग टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं। सो इट इज एन इलास्टिसिटी। ओके, व्हाट इज द डीमेरिट हियर? इट इज रिग्रेसिव. दिस इज डीमेरिट इज मेजर डीमेरिट इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव के वजह से क्या हो जाता है, दैट देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। इन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, देर वॉज अ डिफरेंस। जो पुअर रहेगा वो कम टैक्स भरेगा, जो रिच रहेगा वो ज़्यादा टैक्स भरेगा, जिससे क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी कम हो रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये मार्कर आई विल ऑल्सो परचेस फॉर 25 रुपीज़, मुकेश अंबानी विल ऑल्सो परचेस फॉर 25 रुपीज़, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों के भी पॉकेट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज रिग्रेसिव, इट इज डीमेरिट। ओके Ma'am, यस ma'am, someone is saying something. यस, एनीवन, एनी डाउट? नहीं, किसी का माइक चालू रह गया था शायद से। ये यस विशाखा। यस मैम, आई हैड अ डाउट। या मैम जैसे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो अल्टीमेटली मतलब हम लोग कंज्यूमर से सप्लायर को ही देंगे ना, तो वो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। नहीं, जो सप्लायर रहेगा वो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा, ठीक है। अभी समझो कि ये जो मार्कर है अपना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग ये मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका फैक्ट्री है जिसमें आप लोग ये मार्कर क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो। तो आप ये जो मार्कर फैक्ट्री में आपने मैन्युफैक्चर किया और फिर आपने अपने फैक्ट्री में से, अब फैक्ट्री में से डायरेक्ट कस्टमर को तो नहीं बेचोगे, आप किसको बेचोगे, होलसेलर, होलसेलर को इसको बेचेगा रिटेलर, एंड रिटेलर किसको बेचेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये 100 मार्कर्स बनाए, अभी कौन सा मंथ चालू है, अगस्त मंथ में आपने 100 मार्कर्स बनाए एंड 100 मार्कर्स आपने फैक्ट्री में से सेल किए, से 25 रुपीज़ में ही आपने सेल किए। तो ये जो आपने सप्लाई किया है, गुड्स सप्लाई किया है, क्या सप्लाई किया आपने, ये गुड्स 25 रुपीज़ में, तो इसके ऊपर आपने क्या, ये आपने सप्लाई किया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आपने ये सप्लाई किया, इसके ऊपर जीएसटी आप गवर्नमेंट को पे करोगे, एंड सिंस जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये आप आपके कस्टमर के पास से भी कलेक्ट कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका कस्टमर कौन रहेगा, होलसेलर, ठीक है। तो आप आपके होलसेलर के पास से कलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप होलसेलर के पास से जो 25 रुपीज़ कलेक्ट करोगे उसके अंदर टैक्स का पोर्शन भी इंक्लूड रहेगा। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट। अब ये मार्कर बनाने के लिए आपका फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के अंदर आपको लाइट बिल लगा रहेगा, आपका मशीनरी रहेगा, आपके वर्कर्स रहेंगे जिसको आप सैलरी देते रहोगे, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, आपका एक पीएनएल बनेगा। क्या बनेगा, आपका एक पीएनएल। ये पीएनएल के सॉरी, ये पीएनएल के क्रेडिट साइड में क्या रहेगा मेरा, सेल ऑफ मार्कर, सेल ऑफ मार्कर से 25 इंटू 100 मार्कर्स बेचे हम लोग ने 25 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन ये मार्कर के लिए इसके ऊपर तो मैंने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, बिकॉज गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। अब जब भी आप गुड्स या सर्विस बेचोगे आपको जीएसटी भरना है, इसके ऊपर तो जीएसटी भर दिया। लेकिन ये मार्कर के लिए मैंने कुछ परचेस किया रहेगा, प्लास्टिक परचेस किया रहेगा, इंक परचेस किया रहेगा, मेरा मशीनरी रहेगा, मशीनरी के ऊपर क्या चार्ज करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। फिर सैलरीज रहेंगे, वेजेस रहेंगे वर्कर्स के, ठीक है। ये सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये मेरा इनकम, इसमें से ये सब एक्सपेंस, इसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा, ये कब पीएनएल कैसे बनता है, मंथली बनता है क्या पीएनएल, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड, करेक्ट एवरीवन। तो ईयर एंडेड के लिए बनेगा, ईयर एंड में मैं कैलकुलेट करूंगी, ये तो सिर्फ अगस्त मंथ का है, पूरे साल का सेल वगैरह करके, पूरे साल का एक्सपेंस करके यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, चलो डेप्रिसिएशन भी माइनस करके, सब माइनस करके आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे समझो मेरा नेट प्रॉफिट आता है 8 लाख रुपीज,
कितना आया 8 लाख रुपीस। अब ये 8 लाख रुपीस के ऊपर मैं क्या पे करूंगी, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये तो हो गया 8 लाख रुपीस जो मैंने बिजनेस से कमाया है। ओके, इसके अलावा सपोज मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा एक घर है, मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, सपोज गुजरात में मेरा एक घर है जो मैंने रेंट पे दिया है, वो रेंट से वो घर से मेरे को रेंट भी आता है, हर महीने मेरे को 20,000 रेंट आता है, तो कितना हो गया प्लस 2,40,000, तो ये मेरा 8 लाख मेरा बिजनेस का इनकम हो गया। ऊपर से ये जो घर का मेरे को रेंट आता है, इज दैट इनकम फॉर मी, आई एम रिसीविंग अमाउंट, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, इनकम। तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके ऊपर भी क्या लगेगा, डायरेक्ट टैक्स लगेगा। डायरेक्ट। अंडरस्टूड दिस मच। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या है, जीएसटी में क्या बोला है कि अगर आपका जो घर है, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है, उससे जो आपको रेंट आता है, इफ दैट इज मोर देन अ सर्टन लिमिट, वहां पे एक लिमिट दिया है, अगर वो उस लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, अदरवाइज आपको जीएसटी पे नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ऐसा नहीं है। इफ यू आर अर्निंग इनकम, आप रेंट अर्न कर रहे हो, तो वो रेंट आपको दैट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम, एंड उसके ऊपर आपको डायरेक्ट टैक्स भरना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, ma'am. यस, एनीवन? मैम यू सेड डायरेक्ट टैक्स में इट हैज़ नो सर्टेनिटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई मेरिट नहीं है अबाउट सर्टेनिटी, बट वी नो दैट कि डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा इवेजन होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सर्टेन है ये नहीं है? सर्टेनिटी मतलब क्या, कि अभी समझो कि मेरे को रेंट आ रहा है, ठीक है, अगर समझो हाउस प्रॉपर्टी है और मेरे को रेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई एम सर्टन कि मेरे को हर महीने जब हम रेंट का एग्रीमेंट करेंगे, तो रेंट कलेक्ट करने के पहले एग्रीमेंट होता है 12 महीने का, तो 12 महीने का हम लोग ने एग्रीमेंट किया फॉर 12 मंथ्स, और वो एग्रीमेंट लिखा 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आई एम श्योर कि मेरे को वो 20,000 रुपीज़ आने वाला है। दैट मीन्स इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, फ्रॉम 1st April, तो 1st April को आई नो कि इन दिस ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च अप्रोक्सीमेटली मेरे को 2,40,000 रुपीज़ तो आने वाला है, तो 2,40,000 के ऊपर तो मेरे को इनकम टैक्स भरना ही है। ओके मैम बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको तो नहीं पता ना कि हमारे पास आ रहा है, या उनको कैसे पता कि उन्हें कितना मिलने वाला है? बट नो, उनके पास डेटा रहता है, उनके पास टैक्स पेयर्स का डेटा है, कितने टैक्स पेयर्स, कितने लोग रजिस्टर। इवेजन कैसे हो सकता है? सॉरी, अगर तो फिर इवेजन कैसे पॉसिबल है अगर ये डेटा है उनके पास? इवेजन पर्सनल बेसिस पे है, उनके पास क्या है, टैक्स पेयर्स का रिकॉर्ड है, कि अगर तो आप देखोगे इनकम टैक्स के साइट पे देखोगे, तो वहाँ पे ना टैक्स पेयर्स का डेटा मतलब क्या, कि इतने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ टैक्स पेयर्स है, तो उनको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये 5 करोड़ टैक्स पेयर्स, अगर मेरे को लास्ट ईयर 50 करोड़ मिला था, टैक्स कलेक्ट हुआ था, तो इस साल मेरे को उसके आसपास मिलेगा। एंड ये अपने लिए सर्टेनिटी है कि हम लोग सर्टन कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग को कितना टैक्स पे करना है, एंड इवेजन भी हम लोग ही करते हैं। ठीक है, वो जो डीमेरिट है वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है। ओके मैम, ओके। ठीक है, इवेजन जो है वो क्या है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि हम लोग उसको इवेड करते हैं। ओके, हम लोग टैक्स का, अगर समझो अब ये 2,40,000 है, इवेजन मतलब क्या, कि मैं गवर्नमेंट को बताऊंगी ही नहीं कि मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे है। अंडरस्टूड? ये मैंने क्या कर दिया, इवेड कर दिया टैक्स। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट को थोड़ी सपना आएगा कि उनका ये हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं है करके, यू नेवर नो। इससे क्या होता है, इवेजन होता है। एंड इन केस अगर गवर्नमेंट को टिप मिल गया, सी एक चीज याद रखना, चोरी तब तक चोरी नहीं की जाती जब तक वो पकड़ी ना जाए। ठीक है, जब चोरी पकड़ी जाती है तो ही वो चोरी रहती है। तो अगर मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बताऊँ, कि मैं उनको बताऊंगी नहीं कि मेरा ये कुछ ऐसा हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे, मेरा सूरत में कोई घर है जिससे मेरे को रेंट आ रहा है, मैं सिर्फ बिजनेस का ही बताऊंगी और उसके ऊपर ही टैक्स भरूंगी, ये चलेगा जब तक गवर्नमेंट को नहीं पता चलता है। मैम और पर उसके लिए भी हम सिक्योर्ड पेपर्स बनाते हैं ताकि हमें रेंट मतलब
यस इसलिए क्या रहता है, एग्रीमेंट रहता है, एग्रीमेंट के ऊपर फ्रैंकिंग वगैरह सब करते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे वगैरह रहता है, वो तो अपने बेनिफिट के लिए कि चलो जो टेनेंट है वो भाग ना जाए, देयर इज समथिंग इन राइटिंग, वो हम लोग स्टैम्प पेपर वगैरह पे लिए अपने लिए बनाते हैं एग्रीमेंट के लिए। बट इनकेस अगर समझो नहीं, वो किसी और को देने के बदले में अगर मैंने मेरे किसी रिलेटिव को रेंट पे दे दिया वो घर, ठीक है, एंड मैं क्या करती हूँ उनके पास से रेंट कलेक्ट करती हूँ, से इन कैश 20,000 इन कैश, अदरवाइज क्या होगा, बैंक में आएगा तो गवर्नमेंट कैन क्रॉस क्वेश्चन कि ये 20,000 आपके बैंक में क्यों आए, बैंक में जब रिसीट आया मतलब इनकम आया, तो गवर्नमेंट कैन आस्क मी कि ये 20,000 किस वजह से है। एग्जाम्पल मैं 20,000 कैश में कलेक्ट करूँ, सिर्फ फर्स्ट ही लेक्चर में मैं इवेजन बता रही हूँ, बट इट डजंट मीन्स कि आप लोग ऐसा करोगे, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ पीपल इवेड टैक्सेस। Okay, I can give my house property on rent to my relative and I will tell my relative to give me rent 20,000 rupees in cash. Okay, अब वो जो मेरा रिलेटिव रहेगा वो मेरे को 20,000 कैश में दे देगा, ना गवर्नमेंट के पास कुछ रिकॉर्ड, ना हमारा तो चलो ठीक है कि ट्रस्ट के ऊपर है या हम कुछ स्टैम्प पेपर पे कर लेंगे, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना लिया, वो तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। ओके, कैश में इनकम आ गया, बात खत्म। एंड अगर गवर्नमेंट ने मेरे को पूछा कि ऐसा क्यों है, तो आई कैन से कि मैंने मेरे रिलेटिव को दिया है, उनका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, उनका घर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे साथ रेंट पे रह रहे घर पे। ओके, दैट इज द वे पीपल इवेड टैक्स। ओके, फिर इससे क्या होगा, अब मेरे पास 2,40,000, अभी मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पकड़ी जा सकती हूँ। नाउ आई हैव 2,40,000 कैश इन माई हैंड। ओके, अब ये 2,40,000 में कैश पूरा स्पेंड तो नहीं करूंगी, इफ आई एम यूटिलाइजिंग फॉर माई हाउस होल्ड तो चलो 20,000 खर्च हो जाएगा, बट अगर समझो मैंने 20,000 खर्च नहीं किया, मैं ऐसे ही जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं, तो एट द ईयर एंड मेरे पास कितना कैश जमा हो जाएगा, 2,40,000। अब ये 2,40,000 मैं कहाँ पे कैश यूटिलाइज कर सकती हूँ, अब रह के डबल तो नहीं होगा, आई हैव टू स्पेंड, मैंने अर्न क्यों किया है, स्पेंड करने के लिए। अब ये मैं 2,40,000 कहाँ पे स्पेंड कर सकती हूँ, मोस्टली लोग रियल एस्टेट में यूज़ करते हैं, रियल एस्टेट में। अब ये जो 2,40,000 है इसको बोलते हैं ब्लैक मनी, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक मनी, जिसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है। ये कैश मेरे पास 2,40,000 कहाँ से आया है उसका रिकॉर्ड नहीं है, अगर मैं बोलूँ ये रेंट है तो मेरे को इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बोलती हूँ ये रेंट नहीं है, सो देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दिस मनी फ्रॉम वेयर आई हैव रिसीव दिस 2,40,000 कैश। ओके, सो नाउ आई कैन यूज दिस ब्लैक मनी, मोस्टली रियल एस्टेट में लोग पेमेंट करते हैं, या फिर अगर मैं वहाँ पे यूज़ ना करके मैं बैंक में जाऊँ, तो बैंक में अगर मैं साथ में 2,40,000 डिपॉजिट करती हूँ, देन वहाँ पे मेरा पैन नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर 15 दिन में 10-10 हज़ार बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड ये तो सिर्फ 2,40,000 है। इन केस इसके पीछे मैं और एक जीरो लगा दूँ, इसके पीछे मैं और एक जीरो लगा दूँ, तो कितना हो जाएगा ये 24 लाख। समझो मेरे पास 24 लाख कैश आ गया। अब ये 24 लाख मैं 10,000 करके कब बैंक में जमा करूँ, एंड बैंक में जमा करूंगी तो वापस मेरे बैंक के पासबुक के अंदर एंट्री आ जाएगा, जैसे ही पासबुक के अंदर एंट्री आ जाएगा गवर्नमेंट कैन क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, एंड इतना कैश संभल के रखूँ, एंड इन केस मोदी जी उठ के बोले 8 बजे दैट 500 and 2,000 रुपीज़ नोट्स अभी बंद हो गए, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कैश को आग लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर द रिस्क ऑफ ब्लैक मनी। जैसे आपने भी कहा कि टैक्स पेयर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, जैसे 5 करोड़ है इंडिया में, पर हमारी 5 करोड़ इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट फिगर, वो मैंने ऐसे ही बोला। इनकम टैक्स तो 136 है ना, तो फिर 136 करोड़ तो फिर उसके अंदर भी तो वो भी तो मार्केट करता है ना कि हर किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट को हल्के में नहीं लेने का, उनके पास बहुत रिकॉर्ड्स रहता है। इवन इनफैक्ट अभी जो टेक्नोलॉजी के वजह से जो डेवलपमेंट्स आ रहे, लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन CA फर्म, आई नो मैं रिटर्न्स फाइल करती हूँ। इवन तुम जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में, मतलब यूजुअली क्या होता है, समझो इफ वन पर्सन इज अर्निंग इन फॉरेन, मलेशिया में कोई एक बंदा है,
जो इनकम अर्न कर रहा है, तो वो कौन से अमाउंट में अर्न कर रहा है, मलेशियन रुपीज़ में, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा। एंड वो नॉन रेसिडेंट है, हम कल जो टॉपिक करेंगे उसमें रहेगा। तो जो नॉन रेसिडेंट रहता है ना, उसको इंडिया में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं रहता है, उसको फॉरेन का इनकम एग्जाम्प्ट रहता है और इंडिया में कोई इनकम टैक्सेबल नहीं रहता। तो समझो मलेशिया में वो जॉब पे है एंड मलेशिया में वो इनकम अर्न कर रहा है। मैं हमारा ही एग्जांपल देती हूँ। देयर वाज वन आवर क्लाइंट हु वाज वर्किंग इन कोलगेट कंपनी इन मलेशिया। ही हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मलेशिया, मलेशिया में उसका एक घर भी था। फिर क्या हुआ, मलेशिया में उसने मलेशियन रुपीज़ में सैलरी अर्न किया। तो दैट टाइम ही वॉज नॉन रेसिडेंट, तो उसको कुछ भी टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं था। एंड उसका सैलरी अच्छा खासा था, मतलब ईयरली इंडियन रुपीज़ में पकड़ोगे तो 60 लाख रुपीज़ हो रहा था, 60 लाख रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। लेकिन मलेशियन रुपीज़ में था, वहाँ पे मलेशियन करेंसी में था। फिर वहाँ से क्या हुआ, बाद में उसका कोलगेट कंपनी में रिटायरमेंट हो गया तो वो इंडिया में आ गया। लेकिन उसका बैंक बैलेंस था, उसका क्या था, बैंक बैलेंस था। सो वॉट ही थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो उसने क्या किया, इंडिया में आके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, और वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड ही परचेस वॉज 30 लाख रुपीज़। 30 लाख रुपीज़ का म्यूचुअल फंड्स खरीदा था उसने, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स पे क्या होता है, व्हेन यू परचेस, वो टाइम पे आपको टैक्स भरने का ज़रूरत नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो और अगर आपको इनकम हुआ, गेन हुआ, तो टैक्स भरने का ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट के पास, इसको AIR ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड था कि उसने कितने कितने के म्यूचुअल फंड्स, ये हायर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इसको, जो ज़्यादा अमाउंट के रहते हैं ना, अभी 5 lakhs, 10 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs, ये सब क्या हो गए, हायर अमाउंट्स के ट्रांजैक्शंस हो गए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरा एक फॉर्म रहता है 26 years, पूरा वो नोटिस इशू किया था इस पर्सन के ऊपर, क्या बेसिस पे। एंड वो साल वो मलेशिया में था ना, तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कुछ इवेजन वगैरह का नोटिस नहीं दिया। उसको क्या बोला, गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था कि अगर आपने इतने सारे म्यूचुअल फंड्स परचेस किए हैं, इफ़ दैट पर्सन, उसका जो पोर्टफोलियो था दैट वाज अराउंड 2 crore rupees, if a person is investing in mutual funds for about 2 crore rupees, तो उसके पास इनकम भी रहेगा ना, इनकम अर्न हुआ रहेगा, तब जाके उसने म्यूचुअल फंड खरीदा। व्हेन यू आर परचेजिंग एनीथिंग, तो जब आपके जेब में पैसा है तो आप जाके परचेस करोगे ना, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप परचेस नहीं करोगे। तो वो गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला था कि इफ़ ही हैज़ परचेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, इफ़ ही हैज़ परचेस्ड म्यूचुअल फंड्स, तो इतना इनकम उसके पास आया किधर से, एंड अगर इतना इनकम था तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। अंडरस्टूड। तो फिर हम लोग को वो पास्ट ईयर का उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ा था। तो ये इनके पास वो सिर्फ गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में ही रहता है ये डेटा, ये जो AIR ट्रांजैक्शंस रहते हैं ना, ये गवर्नमेंट को ही एक्सेस रहता है, उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। Yes, any doubt? No ma'am. No ma'am. समझा? Yes, किसी ने फाइल किए हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स आउट ऑफ ऑल, जो ऑफिस में काम करते रहेंगे, या एनीवन? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आगे जैसे जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि लोग सेक्शंस का फ़ायदा उठाने से ज़्यादा लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं कि कहाँ से कुछ वे आउट मिलता है। बिकॉज ऑब्वियसली किसी को भी अपने इनकम में से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को देने को नहीं पसंद। आई ओनली टेल यू, अगर आप लोग CS बन गए, आप अच्छे कंपनी में जॉब पे लगे, आपका फर्स्ट सैलरी पैकेज अगर 6 लाख रुपीज़ रहेगा, एंड वो 6 लाख रुपीज़ में से अगर मैं बोलूँ कि आपको 50,000 गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कहाँ पे टैक्स, पैसा कहाँ पे देते हैं हम, जहाँ पे देयर इज समथिंग इन रिटर्न, राइट। हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ने पढ़ा है, ऑलवेज देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि टैक्स भरना इज नथिंग इन रिटर्न, इट इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट, इसलिए लोग हमेशा क्या करते हैं, उसको इवेड करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग कहाँ पे थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बेशक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का समझा आपको? यस विशाखा, ओके। So it is regressive, and this also there is increased inflation. Increased demerit क्या है, increased inflation. Increased inflation मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, बिकॉज क्या होता जाता है, जैसे जैसे टैक्स ऐड होते जाता है, प्राइस जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता है वो क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और जैसे ही प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। आया समझ में? तो हम लोग ने क्या देखा था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। उसके हम लोग ने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के। फिर कहाँ से जन्म, कहाँ से हुआ था इनकम टैक्स का, कौन से आर्टिकल में से जन्म हुआ था इनकम टैक्स का? आर्टिकल 246 के अंदर से एंट्री नंबर 82 में, ठीक है। एंड किसको पावर्स था, हु हैड द पावर्स, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट हैड द पावर्स टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। आया समझ में? आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा। हाँ मैम आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन नहीं, मैं स्क्रीन कुछ दिखा ही नहीं रही। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो रहता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे बड़ा जो बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड रहता है, वो कौन रहता है, उसका हम बोलते हैं CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। कौन रहता है इसके अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर कौन रहेगा, हमारे फिनेंस मिनिस्टर रहेंगे और बहुत सारे, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, जो संभालता है, उसको हम कौन बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम लोग का रहता है CBIC, दिस इज फॉर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आता है CBIC। CBIC means Central Board of Indirect Taxes and Customs. Central Board of Indirect Taxes and Customs, ठीक है। आया इतना समझ में? यस अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है, इसका क्या रहता है, देयर आर सम कैनॉन्स। अब ये कैनॉन्स इज नथिंग बट अ फैंसी वर्ड फॉर प्रिंसिपल्स। कोई भी एक एक्ट रहता है, अब गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट कर रही है तो कोई तो एक बेसिस से कलेक्ट करेगी, वो बेसिस के लिए क्या बोलते हैं, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स टू कलेक्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैनॉन्स ऑफ टैक्सेस। कैनॉन्स इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल। कैनॉन्स मतलब प्रिंसिपल। तो इसके इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के 4 कैनॉन्स हैं, ठीक है। ये MCQs में पूछ सकते हो लोग। देयर इज कैनॉन ऑफ इक्विटी, सेकेंड इज कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी, ये जो हम लोग ने मेरिट्स के अंदर पढ़े वही है, कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी। थर्ड इज कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस, okay, and fourth one is canon of economy, canon of economy, ठीक है। तो ये 4 है। फर्स्ट क्या है, कैनॉन ऑफ इक्विटी, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो कौन से इसके ऊपर बेस रहना चाहिए, इक्विटी। उसका प्रिंसिपल कौन सा होना चाहिए, इक्विटी प्रिंसिपल होना चाहिए, दैट मीन्स सोशल जस्टिस होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कि जितने लोग, अगर समझो जो भी लोग हैं अगर 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनके ऊपर 20% आएगा। इफ companies earn, if suppose Mr. A is earning more than 10 lakhs, then also 20%, and Mr. B is earning around more than 10 lakhs, तो भी 20%। तो दोनों का टैक्स रेट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सेम वॉल्यूम के लिए सेम टैक्स रेट रहना चाहिए।
तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी. नाउ व्हाट इज सर्टेनिटी? दैट इज देयर शुड बी अ ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज व्हेन द टैक्स इज टू बी पेड. तो जो टैक्स रूल्स रहेंगे वो क्या होने चाहिए? सर्टन रहने चाहिए. उसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए. एम्बिग्यूटी मतलब क्या? जो अनक्लियर पार्ट है वो नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी क्लियर. रूल्स शुड बी क्लियर. रूल्स शुड बी क्लियर. ठीक है. कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मतलब क्या? कि जो टैक्स पेयर रहेंगे उनको एक मोस्टली ड्यू डेट देते हैं हम लोग. जैसे तुम लोग सब लोग ने सुना रहेगा कि इनकम टैक्स का ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऐसा सुना रहेगा. तो गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए? उनको एक टाइम पीरियड देना चाहिए अपना रिटर्न्स फाइल करने के लिए एंड टैक्स पे करने के लिए. ठीक है. एट द कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर्स. एंड नेक्स्ट इज कैनन ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब क्या? कि जो भी अगर समझो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो अगर कम हो रहा है तो दे शुड मेक श्योर कि जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल रहे, वो कॉस्ट कम रहे. ऐसा नहीं कि चलो हम लोग को हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स है उनको ज़्यादा सैलरी देना है तो हम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे लोगों के पास से. ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट देयर बेनिफिट बट फॉर द सोसाइटी एज अ होल. ओके. सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच कैन आस्क इन MCQ. कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या रहेंगे. ओके. एंड गवर्नमेंट के तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट करना. फिर कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए जैसे सोशल नॉर्म, सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब क्या? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके जजेस को सैलरी देना, उनके कोर्ट लॉयर्स को सैलरी देना, पुलिस इंस्पेक्टर्स को सैलरी देना. इतने सारे वो सब उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं. फिर इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करना. ये सब क्या हो गया? गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस हो गए. ठीक है. देन वी हैव सीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मेरिट डीमेरिट. वो कहाँ से आया? एंशियंट का हम लोग ने देख लिया. एंशियंट में मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र में वो मेंशन किया था. ये सब नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Any doubt for today's lecture? No, ma'am. Okay. No, ma'am. इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? क्या याद रखना है? एक तो वो यूनियन लिस्ट वाला याद रखना है. आर्टिकल 246 एंट्री 82 याद रखना है. एंड फिर ये कैनॉन्स याद रखने हैं एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके. Okay, ma'am. Okay. इज दैट क्लियर? Any doubt? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. So we meet tomorrow. I hope it was, and please make sure कि लेक्चर थोड़ा इंटरेक्टिव हो. कुछ भी डाउट्स हो एनी टाइम मैं कभी टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड बीच में भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी, देयर इज नो इशू. ठीक है. बस डाउट रखना मत दिमाग में, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद सोचोगे बाद में पूछेंगे फिर भूल जाओगे डाउट और वो फिर एग्जाम के दिन याद आएगा एंड हो ना हो वही पेपर में आएगा. ओके. तो ये रिस्क नहीं लेने का. ठीक है. Okay, ma'am. चलो. आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल. ओल्ड स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स हुआ है आई थिंक सो. एंड नए स्टूडेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर कि आज जो पढ़ाया वो कल के लेक्चर के पहले रिवाइज करके आने का है. ऐसे मुंह उठा के उठ के नहीं आने का है मेरे लेक्चर में. ठीक है. एवरी डे वी विल डू रिविजन बट आई विल आस्क यू पीपल क्वेश्चंस. मतलब आज जो हम लोग ने सिखाया है कल के लेक्चर में ये रिवाइज करके आना, नोटबुक में एक बार गो थ्रू करके आना. इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स. तो पूरे दिन के शेड्यूल, बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट्स निकाल सकते हो. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ओके. सो वी मीट टुमारो. Thank you, ma'am. वेलकम. बाय. बाय एवरीवन. Okay, ma'am. बाय. लोग कहाँ से